Hello students, I hope you all are well, safe and doing well in your studies. As you know, your second term exam is near and the syllabus of second term exam is chapter 2 part 2 The Shehnai of Bismillah Khan, poem The Road Not Taken and poem Wind. Let's take a quick revision of these chapters. First, we will see word meanings. Insightfully, it means having or showing a very clear understanding. बहुत ही clear understanding को show करना. Diverged, as you know, separate, विभक्त होना, अलग होना. Claim a right to something, किसी चीज पर अपना right होना, वो दावा. Grassy, covered with grass, घास से ढकी हुई. Wanted where the road is not handled, जिससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया हो. Undergrowth, vegetation, it means झाड़ियाँ. Bent, twisted, मुड़ी हुई. Lay in leaves, it means covered with leaves. Doubted, it means feel uncertain about, किसी चीज़ पर संदेह होना. Revive, it means regain, दोबारा प्राप्त करना. Auspicious, it means promising to bring good fortune, जिसे हम जिसने प्रॉमिस किया हो कि हाँ अच्छा लक लेकर आएगा. Ancient, it means earliest. Fascinated, it means glamour. Apprentice, it means trainee, जो शिक्षुता होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनीज होते हैं जो प्रशिक्षण लेते हैं. Solitude, it means wilderness और loneliness, एकांत या अकेलापन. Maestro, it means director. Chartbuster, it means record breaker. Venture, it means project that after involves risk. Emphasis, it means force. Conferred, it means given, जो सम्मानित किया जाता है या दिया जाता है. Coveted, it means much desired, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो. Gleaning, it means shining. Recreate, create again, दोबारा बनाना. Replicating, it means copy, जैसे फोटो कॉपी करवाते हैं तो सेम जो कॉपी होती है replicating. Devout, it means religious, धार्मिक. Funeral, it means burying, दफनाना. Declare, it means announce. Scatter, it means covering a wide area, बहुत दूरी तक फैला हुआ. Crumbling, it means breaking. Winnows, it means to remove, हटाना. Steadfast, it means loyal. Poking fun, it means tease, चिढ़ाना या छेड़ना. Roar, it means thunder. Destruction, it means ruin, नष्ट कर देना, destroy कर देना. Frail, it means weak. Weakling, one that is weak in body, जो physically कमज़ोर होता है, शरीर से जो कमज़ोर होता है. Artificiality, it means the quality of being made by people, लोगों के द्वारा जिसे बनाया जाता है. Employed, it means posted. Souvenirs, it means things given in memory of a place, person or event. कहीं जब हम जाते हैं तो वहाँ से जो चीज़ें हमें यादगार के रूप में दी जाती हैं उन चीज़ों को कहा जाता है souvenirs. Banned, it means prohibited, रोक लगाना, मना करना. Now let's take a quick look of chapter 2 The Shehnai of Bismillah Khan. Answer these questions in 30 to 40 words. 30 to 40 words में आपको इनके आंसर देने हैं. Why did औरंगजेब ban the playing of the पुंगी? जो पुंगी प्ले की जाती थी रॉयल कोर्ट में, उसे बैन क्यों किया था औरंगजेब ने? औरंगजेब banned the playing of pungi because it had a shrill, unpleasant
साउंड, क्योंकि जो उसकी साउंड थी वो बहुत ही तीखी, चुभने वाली और बहुत ही अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं थी. अकॉर्डिंग टू हिम, प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस वॉज नॉट अप्रोप्रिएट. और उनके अकॉर्डिंग जो रॉयल रेजिडेंस है, जो राजभवन है, वहाँ पर उसे बजाया जाना ठीक नहीं है. सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी. जो शहनाई का इन्वेंशन किया गया था वो शहनाई पुंगी से डिफरेंट किस वे में थी. अ शहनाई इज डिफरेंट फ्रॉम पुंगी एज इट हैज़ अ प्लीजेंट साउंड. फर्स्ट थिंग दैट द साउंड ऑफ शहनाई इज प्लीजेंट, कि जो शहनाई की साउंड थी वो प्लीजेंट थी. दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ स्वीट टोन वेयर एज पुंगी हैज़ अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. जो शहनाई थी वो स्वीट टोन में बजती थी, इसकी जो साउंड थी वो स्वीट थी, जबकि जो पुंगी थी वो बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड रखती थी. वैन अ शहनाई इज प्लेड इट प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड. जब शहनाई प्ले की जाती थी तो मधुर आवाज आती थी. दिस इज नॉट द केस विद पुंगी. पुंगी के साथ ऐसा नहीं था, एज इट इज अ रीडेड नॉइज मेकर, क्योंकि उस समय पर इसे एक नॉइज मेकर मान लिया गया था, आवाज करने वाला इंस्ट्रूमेंट मान लिया गया था. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली. ट्रेडिशनली मीन्स परंपरागत रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती थी. हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस. और बिस्मिल्ला खान ने इसे कैसे चेंज किया. द शहनाई वॉज प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. परंपरागत रूप से जो शहनाई है उसे केवल रॉयल कोर्ट में, मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता था. बिस्मिल्ला खान चेंज्ड दिस बाय ब्रिंगिंग शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. जो बिस्मिल्ला खान है उन्होंने इसे क्लासिकल स्टेज पर परफॉर्म किया और उसे वहाँ तक लेकर आए. द क्रेडिट फॉर दिस फुली गोज टू हिम. और शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक, इंटरनेशनल लेवल तक जो इसे प्ले किया गया, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो बिस्मिल्ला खान को जाता है. When and how did बिस्मिल्ला खान get his big break. बिस्मिल्ला खान को when मीन्स कब और how यानी कैसे, कब और कैसे पहला बड़ा ब्रेक मिला था शहनाई को प्ले करने के लिए या सिंगिंग के लिए. बिस्मिल्ला खान got his first break when he was adjudged, इट मीन्स जज किए गए थे, द बेस्ट परफॉर्मर एट द ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद. जब ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हुई थी, वहाँ पर जब उन्हें बेस्ट परफॉर्मर के रूप में जज किया गया था, बेस्ट परफॉर्मर बनाया गया था, तब उन्हें पहला ब्रेक मिला था. He got the prize for it just at the age of 14. और उन्हें ये जो प्राइज मिला था बेस्ट परफॉर्मर का, ये ओनली 14 ईयर्स की एज में मिला था. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938, he succeeded in getting a big break. और जब ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में पहली बार ओपनिंग हुई थी, पहली बार वहाँ पर ओपन किया गया था रेडियो का ऑफिस, तब 1938 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला था. ही सून बिकम अ पॉपुलर शहनाई प्लेयर एंड वॉज ऑफन हर्ड ऑन रेडियो. वो एक बहुत ही पॉपुलर शहनाई प्लेयर बन चुके थे, उस जल्द ही बन गए थे, रेडियो पर प्ले करते थे वो शहनाई, और उन्हें अक्सर रेडियो पर सुना जाता था. लोगों की डिमांड होती थी कि हमें शहनाई प्लेइंग सुननी है बिस्मिल्ला खान की. तो पहला बिग ब्रेक उन्हें आफ्टर ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, ही गेट ए बिग ब्रेक. वेयर डिड बिस्मिल्ला खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्ला खान ने शहनाई कहाँ प्ले की थी. वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक. और ये जो इवेंट था ये ऐतिहासिक क्यों माना जाता है. On 15th August 1947, बिस्मिल्ला खान played the शहनाई at रेड फोर्ट in Delhi. दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ पर शहनाई प्ले की थी. एंड एज यू नो, on 15th August 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस.
इस दिन स्वतंत्रता मिली थी और जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी इन्होंने शहनाई प्ले की थी रेड फोर्ट पर। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक एज इट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे था। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, और वो पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई से पूरे इंडिया को, पूरे राष्ट्र को ग्रीट किया था, पूरे राष्ट्र का अभिवादन किया था। इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी ग्रेट लीडर्स, बहुत सारे ग्रेट लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लीडर्स थे, उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिया था बिस्मिल्ला खान ने? बिस्मिल्ला खान refused to start a Shehnai school in the USA because he had great love for India and बनारस। इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें इंडिया से और बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार था। He wanted river Ganga also to be transported there for creating an atmosphere for him and that was impossible। जब उनके एक डिसिपल ने, उनके एक शिष्य ने वहाँ पर जो जितने भी मंदिर थे बनारस के, गंगा घाट के, वो सारे वहाँ बना दिए थे, तब उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि जो गंगा नदी है उसे भी ट्रांसपोर्ट करके यहाँ ले आओ, तभी यहाँ पर वैसा एटमॉस्फेयर, वैसा वातावरण क्रिएट हो पाएगा जैसा कि बनारस में है, जो कि इम्पॉसिबल था। Whenever he was in foreign country he kept yearning for हिंदुस्तान। जब वो किसी दूसरे देश में होते थे तो वो तड़पते थे हिंदुस्तान आने के लिए। सो ही हैड अ ग्रेट फीलिंग ऑफ पैट्रोटिज्म इन हिम, इसलिए उनमें बहुत ही ज़्यादा पैट्रोटिज्म, इट मीन्स देशभक्ति की भावना थी। मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, उनके लिए मनी, उनके लिए पैसा कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। फाइंड आउट एटलीस्ट 2 इंस्टेंस, इट मीन्स एग्जाम्पल in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras। 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं टेक्स्ट में से, इट मीन्स इस चैप्टर में से, जिनसे ये पता लगता है कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस से बहुत प्यार करते थे। एज ए चाइल्ड बिस्मिल्लाह खान वुड विजिट बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल्स इन बनारस। जब वो बच्चे थे तो बालाजी और मंगला मैया के जो टेम्पल्स बनारस में बने हुए थे वहाँ जाते थे, विजिट करते थे, वहाँ की घूमते थे वहाँ पर। हिज फेवरेट हॉन्ट, इट मीन्स प्लेस, वॉज द बैंक ऑफ होली गंगा। उनका जो फेवरेट प्लेस था वो गंगा नदी का किनारा था जहाँ वो बैठकर प्रैक्टिस करना चाहते थे। ही वुड सिट देयर फॉर आवर्स ऑल अलोन, वो अकेले वहाँ घंटों बैठे रहते थे। बनारस हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जो बनारस है वो उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए फॉर हिज एक्सट्रीम लव फॉर हिज कंट्री। अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार के कारण ही उन्होंने यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया था। Whenever he was in foreign country, he had a great yearning for his country India। और जब वो किसी दूसरे देश में होते थे तो उन्हें अपने देश इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा yearning मीन्स तड़प होती थी, वो वापस अपनी कंट्री आना चाहते थे। So dear students, these are the question answer of chapter 2 part 2 Shehnai of Bismillah Khan। You have to learn all these word meanings and these question answer। Thank you and have a nice day.